Smile, hello everyone. This is Dr. Reshma Suryavanshi from Dr. Suryavanshi's Pearls Clinic, Vadodara, Gujarat. I'm the president of Heritage Foundation India, Gujarat, and in this video, I'm going to review the points on gallbladder meridian that will be helpful for all the students, those who are going to give exam of Maharashtra Acupuncture Council. So let's get started. So the first point into our syllabus is gallbladder 8 point, and the location of this point is 1.5 June directly superior to the apex of ear. So this is the apex of ear and 1.5 June superior to the apex of the ear in the depression on the upper border of the temporalis muscle. You have this point that is gallbladder 8. ये gallbladder 8 का लोकेशन कैसे लेना है आपको, तो ये apex of the ear का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वहां से जब आप 1.5 जून ऊपर जाते हैं तो आपको ये जो पॉइंट मिलता है यहाँ पर, ये gallbladder 8 है. और इसके इंडिकेशन है आपके ईयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर, तब आप ये पॉइंट देंगे. या आपका ये जो क्रैनियल रीजन है, तो हेमिक्रैनियल हेडेक अगर आपको है, एक साइड का हेडेक है, तब भी इस पॉइंट को ले सकते हैं, जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं. माइग्रेन हेडेक्स में भी आप इस पॉइंट को ले सकते हैं. So the indication of these points are ear dysfunction, hemicranial headache and migraine. The next point in this series of gallbladder meridian is gallbladder 14. So this is the point that is gallbladder 14, and gallbladder 14 is basically used for disorder of the eyes के लिए we are using this. इसका location सबसे पहले हम देख लेते हैं gallbladder 14 का. On the forehead directly above the pupil. तो ये हमारा pupil है, इससे directly above जब हम लोग जाते हैं, above 1 June above the midpoint of the eyebrow. तो ये हमारे eyebrow का जो mid point है, इससे हम जब 1 June ऊपर जाएंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा. 1 June आपका आईब्रो का मिड पॉइंट से 1 June ऊपर आप जाओगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा gallbladder 14. ऑन द फोरहेड डायरेक्टली अबाउ द प्यूपल, 1 June above the midpoint of the eyebrow, you will have this point gallbladder 14. And the indication of this point are headache है, dysfunction of the eyes, फ्रंटल साइनसाइटिस, फेशियल पैरालिसिस एंड मेमोरी डिसऑर्डर्स. तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो. सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इसको आई डिसऑर्डर्स में, क्योंकि आई डिसऑर्डर में ये लोकल पॉइंट है gallbladder 14. इसके अलावा हम हेडेक्स में भी यूज कर सकते हैं, फ्रंटल साइनसिस के लिए यूज कर सकते हैं, फेशियल पैरालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, और मेमोरी डिसऑर्डर्स के लिए भी gallbladder 14 को हम यूज कर सकते हैं. जो थर्ड पॉइंट हमारा सिलेबस का है वो हमारा gallbladder 20 पॉइंट है. और ये gallbladder 20 जो पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट हमको मिलता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑसिपिटल बोन. तो ये जो हमारा ऑसिपिटल बोन है, इसके लोअर बॉर्डर पे मिलता है, इन द डिप्रेशन बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द स्टेनोकॉलॉइड मस्टॉइड एंड द ट्रेपेजियम मसल. तो इसके बीच में यह पॉइंट हमको यहाँ पर मिलता है, जो हमारा gallbladder 20 पॉइंट है. सो एट द इट्स लोकेशन इज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑसिपिटल बोन, in the depression between the origin of the sternocleidoid muscle and the sternocleidoid mastoid and the trapezium muscle. So in between that you are getting this point, that is the gallbladder 20 point. And the indication of these points are headache, pain in shoulder, neck region, dysfunction of the eyes, vertigo, infection similar to influenza, difficulty in swallowing. Also you can use this point for tinnitus, hearing disorder, lack of concentration, poor memory. Very good point also for hypertension. So those who are suffering from high BP, you can use this point for hypertension. Painful changes in the spine, especially lumbar and sacroiliac. तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. gallbladder 20 पॉइंट है. किसी भी प्रकार का अगर सर में दर्द है, शोल्डर में या नेक रीजन में पेन है, या कोई भी डिसफंक्शन आपके आईज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या वर्टिगो का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो रिंगिंग साउंड ऑफ ईयर्स में जो आता है, टिनाइटिस का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, या पुअर मेमोरी है, या हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन सब के लिए पॉइंट बहुत ही अच्छा है. जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीरीज में है वो हमारा gallbladder 21 पॉइंट है. और gallbladder 21 के लिए मैंने हमेशा आपको क्लासेस में भी बताया है कि बेस्ट हार्मोनल पॉइंट है हमारा. तो अगर हमारे हार्मोन्स को अगर हमको बैलेंस करने हैं तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है. हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, हमारे हार्मोन्स को जो है वो हार्मोनाइज करने के लिए gallbladder 21 हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है. और इसका लोकेशन जो होता है वो इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर. तो ये हमारा जो शोल्डर है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग C7. तो हम सर्वाइकल वर्टिब्रा C7 से, और हम जब एट द ये आते हैं लेटरल एक्सट्रीमिटी ऑफ द एक्रोमिनियम. तो ये हमारा लेटरल एक्सट्रीमिटी ऑफ द एक्रोनियम है, एक्रो
मीनियन है, तो यहाँ से आपका C7 से और एक्रोमिनियम तक आप आते हो तो उसका ये मिड पॉइंट होता है और इस शोल्डर एरिया का सबसे उपसा हुआ हिस्सा है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द सर्वाइकल 7th vertebra and the lateral extremity of the acromion, you will have this point that is the C7 point. इंडिकेशन जो है इस पॉइंट के हमारे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट होमोस्टेटिस पॉइंट हमारे बॉडी का ये है ही। अगर हमको कोई भी एंडोक्राइन रिलेटेड या हार्मोन रिलेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट को देंगे। इसके अलावा इंडिकेशन आप पेनफुल अल्ट्रेशन ऑफ द शोल्डर और नेक के रीजन में कोई भी पेन है तो हम यूज कर सकते हैं। हेडेक्स, डिफिकल्टी टू ब्रेस्ट फीड, और ये पॉइंट प्रमोट्स लैक्टेशन। तो अगर कोई फीमेल है जिनका दूध कम आ रहा है आफ्टर द डिलीवरी, तब भी आप इस पॉइंट को दे सकते हो। तो दिस पॉइंट ऑल्सो प्रमोट्स लैक्टेशन, और तो उन सभी चीज़ों में आप ये गॉल ब्लैडर 21 को यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और याद रखनी है कि ये इसको जो है हम बहुत ज्यादा डीप नीडलिंग नहीं करते, क्योंकि डीप नीडलिंग करेंगे तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। सो दैट इज अ पंचर, आपका जो है वो लंग्स में पंचर हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, इसलिए डीप नीडलिंग नहीं किया जाता है इस पॉइंट पे। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब जो आगे के जो हमारे गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स है वो हमारे पैर में है, तो आइए अब हम उनको देखते हैं। अब हम पैर में जो पॉइंट्स हैं हमारे गॉल ब्लैडर मेरिडियन के सिलेबस में वो देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर वो गॉल ब्लैडर 30 है। तो ये गॉल ब्लैडर 30 का जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा जो हम ग्रेटर टोकेंटर है वहां से जब हम ये पॉइंट को लेते हैं तो इट इज with the patient lying on their side, the point at the junction between the medial 2/3 and the lateral 1/3 of the line connecting the greater trochanter to the sacral hiatus। आप अगर पेशेंट का हाथ लेके देखेंगे तो उसकी जहां पर मिडल फिंगर टच होती है तो वो हमारा जो पॉइंट है, ये हमारे जो पॉइंट है हमारा गॉल ब्लैडर 30 नहीं, हम गॉल ब्लैडर 31 कर रहे हैं। तो करेक्शन आप लोकेशन का लीजिए कि हमारा गॉल ब्लैडर 31 है ये। तो गॉल ब्लैडर 31 ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई इंफीरियर टू द ग्रेटर टोकेंटर अप्रोक्सीमेटली 7 जून प्रॉक्सिमल टू द पॉप्लेटियल क्रीज। तो हमारा ये जो पॉप्लेटियल क्रीज है इससे 7 जून जो हम प्रॉक्सिमल जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आता है। और जब पेशेंट का हाथ हम इस तरह से साइड में रखते हैं तो मिडल फिंगर उसकी जहां पर टच होती है वो वाला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा गॉल ब्लैडर 31 है। तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ अबाउट दिस लोकेशन। तो लोकेशन का करेक्शन आप कर लीजिएगा। ये पॉइंट जो हमारा है दैट इज ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो ये हमारा थाई का लेटरल एस्पेक्ट है, इंफीरियर टू द ग्रेटर टोकेंटर, ग्रेटर टोकेंटर से नीचे की तरफ को है, अप्रोक्सीमेटली 7 जून फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू द पॉप्लेटियल क्रीज। तो हमारा ये पॉप्लेटियल क्रीज है, इससे हमारा ये 7 जून जो है वो प्रॉक्सिमल पॉइंट है। ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई इंफीरियर टू द ग्रेटर टोकेंटर अप्रोक्सीमेटली 7 जून प्रॉक्सिमल टू द पॉप्लेटियल क्रीज, यू विल फाइंड दिस पॉइंट विच इज गॉल ब्लैडर 31। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसका इंडिकेशन जो है लोअर बैक पेन में, कमर का जो नीचे का दर्द होता है उसमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर पेल्विक रीजन में कोई पेन है या हिप में है उसके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। साइटिक पेन में भी इस पॉइंट का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। हाइपरटेंशन और डेजीनेस में भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो। सो द इंडिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर 31 आर लो बैक पेन, पेन इन द pelvis and the hip, pain in the hip, also paralysis of the leg, hypertension and dizziness। तो ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर 31। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिलेबस में है वो पॉइंट जो हमारा है दैट इज गॉल ब्लैडर 34 पॉइंट। और गॉल ब्लैडर 34 के लिए हमेशा मैंने क्लासेस में भी बोला है कि ST 36 हमारा है, गॉल ब्लैडर 34 है, स्प्लीन 6 है। ये सब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब एक ही लेवल पे ये पॉइंट है। तो हमारा गॉल ब्लैडर 34 का जो लोकेशन है इट इज इन द डिप्रेशन एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द हेड ऑफ फिबुला। तो हमारा ये जो फिबुलर बोन है इससे एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द हेड ऑफ फिबुला है, बिटवीन द पेरिनियस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस मसल, उसके बीच में ये है। सो दैट इज द गॉल ब्लैडर 34। और आपका जो गॉल ब्लैडर 34 है ST 36 है, और आपका जो पॉइंट स्प्लीन 9 है ये एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट्स आए हुए हैं। और गॉल ब्लैडर 34 अगर आपको याद है तो ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है आपका मसल्स एंड टेंडन्स के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि गॉल ब्लैडर 34 हमने पहले भी इन्फ्लुएंशियल के लिस्ट में भी किया है, एंड इट इज इन्फ्लुएंशियल टू मसल एंड टेंडन्स। सो
In the depression anterior and inferior to the head of fibula between the peroneus longus and extensor digitorum longus muscle, ये पॉइंट हमारा गॉल ब्लैडर 34 है। इसके इंडिकेशन जो है वो कुछ भी हमारे लेग के रिलेटेड कोई भी पेन है या पैरालिसिस है उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट जो हमारा है ये पेल्विक रीजन में या हिप रीजन में कोई पेन है तब भी हम इसको यूज़ करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये हमारे मसल एंड टेंडेंस के लिए इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, तो कहीं पे भी फुल बॉडी के मसल या टेंडेंस है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। सो द इंडिकेशन आर alterations of the leg associated with pain or paresis, pain in the region that includes the dorus, pelvis and hip area and to the leg, temporal headache and migraine, pain and pressure in chest, upper and lower abdomen, पेनफुल अल्ट्रेशन ऑफ द इंटायर लोकोमोटर सिस्टम। सो पूरा लोकोमोटर सिस्टम में कहीं पे भी अगर पेन है तो आप इस पॉइंट को गॉल ब्लैडर 34 को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड डिसफंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर का कोई डिसफंक्शन है तब भी आप ये पॉइंट गॉल ब्लैडर 34 को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सिलेबस में है वो हमारा गॉल ब्लैडर 37 पॉइंट है। और गॉल ब्लैडर 37 का पॉइंट जब हमने पूरा थियोरी देखा तब भी हमने देखा कि गॉल ब्लैडर 37 हमारा आई स्पेसिफिक पॉइंट है। तो आइज का कोई भी डिसऑर्डर हो, चाहे वो कोई नाम डिजीज का कुछ भी हो, एनी डिसऑर्डर ऑफ द आइज में हम गॉल ब्लैडर 37 को जरूर लेते हैं। इसका जो लोकेशन हमारा है वो हम लेटरल मेलुलस से 5 चुन ऊपर, ये हमारा मिड जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लेटरल मेलुलस है उससे जब हम 5 चुन ऊपर जाते हैं तब हमको ये गॉल ब्लैडर 37 मिलता है। सो द लोकेशन इज 5 चुन प्रॉक्सिमल टू द हाईएस्ट प्रोमिनेंस ऑफ लेटरल मेलुलस ऑन द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिबुला बिटवीन द पेरोनियस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस मसल। तो वहां पर ये पॉइंट हमारा गॉल ब्लैडर 37 है। इंडिकेशन में पेन इन द लोअर लेटरल रीजन ऑफ द लेग एंड डिसफंक्शन ऑफ द आइज। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम है, ये लेटरल रीजन ऑफ लेग में कोई भी प्रॉब्लम है, पेन है, तो आप गॉल ब्लैडर 37 को यूज करोगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि इट इज आई स्पेसिफिक पॉइंट है आपका गॉल ब्लैडर 37। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो गॉल ब्लैडर 39 पॉइंट है। और हमारे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के लिस्ट में ये पॉइंट गॉल ब्लैडर 39 था जो इन्फ्लुएंस करता है बोन मैरो को। तो गॉल ब्लैडर 39 के लिए आपको याद रखना है गॉल ब्लैडर 37 आइज के लिए पॉइंट है और गॉल ब्लैडर 39 है वो बोन मैरो के लिए आपका पॉइंट है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। लोकेशन वापस से हम जो ये आउटर मेलुलस का जो टॉपमोस्ट पॉइंट है वहां से जब हम यहाँ पर 3 चुन ऊपर जाते हैं तो ये पॉइंट हमको गॉल ब्लैडर 39 मिलता है। सो इट इज कॉल्ड एज द लोकेशन इज 3 chin proximal to the highest prominence of lateral malleolus on the interior border of the fibula, वहां पर ये हमारा पॉइंट गॉल ब्लैडर 39 है। एंड इंडिकेशन पेनफुल चेंजेस ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आईज, बोन्स एंड मिलाइटिस, यू कैन यूज दिस पॉइंट, दैट इज गॉल ब्लैडर 39। तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स जो हमारे काउंसिल के एग्जाम में जो हमारे सिलेबस में है उसका लोकेशन और उसके इंडिकेशन। थैंक यू सो मच।